Welcome back guys to my YouTube channel. Myself Pransu Kumar Pathak, and this particular lecture we will discuss about DNA replication in eukaryotes. Okay, so dear guys, till this lecture I have discussed a lot about prokaryotic replication, modes of replication, and this particular lecture will deal with the eukaryotic mode of replication. Okay, so in this particular lecture we will understand eukaryotic DNA replication. So for starting we have to understand the DNA polymerase in eukaryotes. Okay, so 5' to 3' exonuclease activity and 3' to 5' exonuclease activity. These all polymerases have 5' to 3' polymerase activity. So polymerization तो सारे करेंगे because these all are DNA polymerase. So polymerization सब करेंगे. But dear friend, 5' to 3' exonuclease activity कहीं देख रहे हैं आप? हमें बताइए. No. None of these polymerase is able to perform exonuclease activity in 5' to 3' direction. So the removal of RNA fragment is really very tedious in the case of eukaryotes. Okay, so dear friend, the 3' to 5' exonuclease activity is also not present in all type of polymerases, like alpha, beta, it is not present. In gamma it is present because this type of polymerase help in mitochondrial DNA replication. हम अभी cover करके आए हैं, ठीक है? And delta is really important, and this delta polymerase contain 3' to 5' exonuclease activity, and delta synthesizes lagging strand. Okay, and this also involving DNA repair and translesion DNA synthesis. Translesion क्या होता है? जब हम DNA repair mechanism पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा. If delta हमेशा क्या करता है? Lagging strand. Epsilon क्या करता है? Leading strand synthesis. Okay, and these all are again not important for you guys. If you want to understand about these DNA polymerases, you can try by yourself. These all are not used for DNA polymerization. ठीक है, DNA polymerization में direct involvement कहीं इन सारे polymerases का नहीं है, so I will not discuss these all. Okay, so for comparison from prokaryote to eukaryote, I have taken a snapshot from a book. Okay, so as you can see here, this is prokaryotic organism and this is eukaryotic one. So these all are DNA polymerases. So what is the use of DNA polymerase 1 in prokaryote? This used for removal of RNA because it have 5' to 3' exonuclease activity, and this exonuclease activity is not found in eukaryotic organism. So removal of primer is done by a specific type of RNase known as RNase H, which I will discuss in upcoming slides also. DNA polymerase 2, that is basically used for DNA repair. Pol3 is a main enzyme for chromosomal replication, that is the core one, and this is whole complex. Okay, so holo enzyme. And Pol4 and Pol5 is basically used for error prone replication, that is the example of SOS response in bacteria, that is called save our soul response. And then as you can see, this is Pol beta in eukaryote is used for base excision repair, and this gamma, which I have already told you in previous slide, this is used for mitochondrial DNA replication, and this delta used for lagging, epsilon used for leading, and so forth. आगे बढ़े, चलिए. Now these all polymerases, basic polymerases which used for principal human DNA polymerase. So human DNA polymerase, that is alpha polymerase क्या करेगा? RNA primer बनाएगा.
ठीक है, ये प्राइमर बनाने के लिए ही बेसिकली होता है, इसीलिए ये प्राइमेज है। सो यूकैरियोट में ये क्या होगा, डीएनए जी होगा। ओके, डीएनए जी से क्या करेगा, रिजेंबल करेगा। ठीक है, एंड दिस इज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ओके, सो दिस डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखिए डेल्टा क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है, इप्सिलॉन क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, सो दिस डेल्टा इज यूज्ड फॉर लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड इप्सिलॉन इज यूज्ड फॉर लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बोथ सिंथेसिस। इसलिए मैं बोला था कि इप्सिलॉन के बारे में बहुत कंफ्यूजन है अभी भी, लेकिन आपको याद रखना है कि डेल्टा क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है, और इप्सिलॉन क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है। दैट इज द गामा is used for mitochondrial DNA replication, which I have already covered. So DNA polymerase beta is basically involved in DNA repair mechanism. आगे बढ़े, चलिए बेसिकली ये क्या है, पूरा जो खेल है यूकैरियोट्स के रेप्लिकेशन का, वो सेल साइकिल पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। सो गाइज, इफ यू डोंट नो अबाउट सेल साइकिल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेल साइकिल। मे बी I think Janice ने मुझे बोला है कि he will take the class on cell cycle, so I'm leaving this topic for him and देखते हैं क्या होता है, but basic you have to understand about the what cell cycle। ठीक है, सेल साइकिल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बट बेसिक फंड आपको याद रखना है कि जीवन जो होता है वो क्या होता है, सबसे इंटरफेज सबसे बड़ा एंड एम फेज इज वेरी शॉर्ट। समझ में आया? और ये 2n 4n क्यों हुआ, क्योंकि दिस टाइम डीएनए इज डुप्लीकेटेड, सो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज बिकॉज दिस इज फ्रॉम 2n to 4n, और यहाँ तक क्या है 2n है, बट इन m फेज दैट इज द माइटोसिस फेज अगेन 4n कन्वर्टेड इनटू द 2n इन द केस ऑफ सोमैटिक सेल्स। इसको ध्यान में रखिएगा, सोमैटिक सेल, दिस इज रियली वेरी अगेन इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, आगे बढ़े, चलिए। टू स्टार्ट विथ, दिस इज द टेम्पलेट डीएनए एंड दैट टेम्पलेट डीएनए दैट इज द ORC, that the ATP driven process happen, then as ATP comes and it recruit CDC6, this CDC6 again combined with CDT1 and MCM27, that is a type of helicase. Okay, this together comes at the origin of replication and form a complex. ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू गाइस। सो दिस इज कॉल्ड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये कैसे बन रहा है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू अंडरस्टैंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक थिंग्स अबाउट द मैकेनिज्म। ओके, चलते हैं आगे और कोशिश करते हैं इसको समझने का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड pre-replicative complex at eukaryotic replication. ठीक है, so initiation site that is origin bonded by ORC that is CD6 and CDT1. ये क्या करते हैं, लाइसेंसिंग कॉम्प्लेक्स हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि दिस इज CD6 and CDT1 is a licensing complex. This protein many of AAA ATPase जैसे प्रोकैरियोट में देखे थे वही यहाँ पे भी है। ठीक है, promotes loading of the replicative helicase, that is the, वहाँ पे क्या था DNA B और यहाँ पे क्या है MCM227। ठीक है, in reaction that is analog to the loading of bacterial DNA B helicase by DNA C. DNA C क्या करता है, DNA B को लोड करता है। ठीक है, लोडर है ना। चलिए, अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट गो फॉर प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन मेथड। ओके, वहाँ पे मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। सो जस्ट गो एंड ट्राई टू वॉच द प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू जस्ट इरेज दिस होल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे भी क्या खोजना है, AT-rich sequence, because origin of replication is really very important. So for initiation you must have AT-rich sequence. In Saccharomyces cerevisiae this is called as A or S, that is called autonomously
replicating sequence or replicators. Okay, so in yeast, replicator span 150 base pair and contain several essential conserved sequences. Conserved sequence क्या होता है? जो कि हमेशा conserved हो जीनोम में. अगर ये नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है या मान लिया जाए दूसरा इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या कितना भी जनरेशन जाए, बट दैट सीक्वेंस will never be changed in any one of the generation. So this type of thing is known as conserved sequences. Okay, so about 400 replicators are distributed among 16 chromosome of the haploid genome. ईस्ट में ऐसे कितने होंगे 2n32 और हैप्लोइड में कितना होगा 16. Okay, so regulating ensure that all cellular DNA is replicated once per cell. Much this regulation involve protein called cyclin and cyclin dependent kinases with which it's form a complex. मतलब क्या है, जितना भी ये प्रोसेस हो रहा है पर साइकिल एक ही बार होना चाहिए. So this is really very tightly regulated. You know, this is not a simple task. It's very very finely tuned process. Okay, so the cyclin and are rapidly destroyed by ubiquitin dependent proteolysis. दो तरह से प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, whether it is by lysosomal degradation or whether it is ubiquitin dependent proteolysis or protein degradation machinery will help. And these two techniques is really very important, you guys, again, and these things again taken by the cell biology part. Okay, जो सेल बायोलॉजी पार्ट्स पे हम उसको अच्छे से कवर अप करेंगे. ठीक है, सो गाइज, सो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जो प्री आरसी कहते हैं, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स इज दिस. ओके, और ये जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं लाइसेंसिंग. यू नो, कभी भी आप जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई अगर मान लिया जाए आप कोई कंपनी खोलना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक लाइसेंस. सो अगर आपको डीएनए रेप्लिकेट करना है, सेल को डीएनए रेप्लिकेट करना है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा कि यस आई विल रेप्लिकेट. सो लाइसेंसिंग कॉम्प्लेक्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर लाइसेंसिंग it is not possible to go into the further replication process. So guys, we have to understand really minute things. So for DNA replication, two things is really very important. One is the licensing of the replication of origin and second is the activation of the replication center. दो चीजें बहुत जरूरी है. अगेन, वन लाइसेंसिंग कैसे हुआ आपने देखा, हम इस वाले पार्ट में भी अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे. एंड सेकंड थिंग इज द एक्टिवेशन ऑफ रेप्लिकेशन सेंटर. ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं. ठीक है, और चेक पॉइंट्स है, साइक्लिन है, सीडीके है, दिस ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ ए सेल बायोलॉजी लेक्चर. सो जस्ट आई एम मेंशनिंग हियर. ओके, सो चेक पॉइंट कंट्रोल है ना, ये सब चीजें मैं छोड़ रहा हूँ. ठीक है, चलिए जस्ट वी हैव टू स्टार्ट द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, origin recognition complex, that is the ORC, the protein complex that bind to the replication of origin. Indeed, eukaryotic replication origin are defined as nucleotide sequence that bind to the ORC region. Okay, so two things is really very important for the process of DNA replication in eukaryote. First is the licensing of the replication of origin and second is the activation of the replication center. So these two things is really very important for you guys. So to understand well, just we have to erase all the thing and then we will go further. So S phase क्या है? S phase is only a denotation for the DNA replication phase. S phase में क्या होता है? DNA replication होता है through two protein that is called CDC7 and SCDK. Okay, so licensing involve highly regulated assemble pre-replication complex that is called as PRC. and basically फंडा क्या है, ये पूरे क्लास में आप जैसे देख रहे हो कि रेप्लिकेटिंग लाइसेंसिंग फैक्टर MCM है, CDC6 है और CDT1 है. ठीक है,
और ये सारा प्रोसेस जो है मिल करके एक बनाता है CMG हेलिकेज। तो CMG हेलिकेज में क्या क्या होता है? C में होता है CDC45, M is stand for MCM227 and C is stand for GINS. So this together three can form CMG complex, and this complex is again very important for eukaryotic modes of DNA replication. It's as like helicase. ठीक है, हेलिकेज कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे वहां पे रिक्रूट कर रहा है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाता है प्री आरसी। ठीक है, एंड बेसिकली जो CDT1 है और CDT6 है, एक कहलाता है रेप्लिकेटर एक्टिवेटर प्रोटीन विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द लाइसेंसिंग कॉम्प्लेक्स। सो CDC6 is degraded and again accumulated for the next round of replication। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ रही है? तो आपको मेन दिमाग में क्या रखना है, CMG कॉम्प्लेक्स फिर आएगा जब आप टर्मिनेशन की बात करोगे। ठीक है, यही CMG कॉम्प्लेक्स क्या है, हेलिकेज है ना, तो हेलिकेज क्या अगर टोपोआइसोमरेज आएगा और यही CMG कॉम्प्लेक्स क्या होगा, फिर स्टेबल यूबिक्विटिन के साथ बाइंड करेगा और एक क्या हो जाएगा, हॉल्ट करेगा। ठीक है, सो आई विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स। ओके, so this is really very important to you guys to understand the whole mechanism of this thing. So I have already discussed a lot about the CMG complex, and CMG complex is nothing, this is this three factor together called an CMG complex। और ये कुछ नहीं, ये प्री आरसी का हेलिकेज का कॉम्प्लेक्स है जो कि DNA रेप्लिकेशन को इनिशिएट कराएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। सो ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कैसे यह पूरा खेल चलेगा। ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू गाइस। ओके, आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट, सो ट्राई टू पॉज माय वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया अबाउट दिस थिंग्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू अ फ्लेवर ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज द ORC कॉम्प्लेक्स, CDC6 and CDT1 together is going to the origin complex and bind there, and this binding of CDC6 and CDT1 is a licensing format. So this all things can together called as pre-replication complex। समझ में आया? pre-RC क्या है? यही सारा चीज, origin complex हो गया, CDT1 हो गया, CDT1 हो गया और MCM227, ये हेक्सामेरिक जो फॉर्म का हेलिकेज है, ये सारा जब एक साथ एक फॉर्मेट में DNA टेम्पलेट में आके अटैच होते हैं तो इसे हम कहते हैं प्री आरसी कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए। सो गाइज, सो दिस इज MCM इज नथिंग, इट्स जस्ट ए हेलिकेज, हेट्रो हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स है ना, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस से हम कहते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में होता है MCM, दैट इज ए प्रोटीन फ्रॉम 2 to 7 called as helicase। So this is called as ORC recognition complex। ठीक है, समझ में आया? So 555 AATPase domain among the subunit are functionally analog of bacterial DNA। समझ में आया? तो जो 5 वहाँ पे DNA A था, DNA B था, DNA C था, DNA G था, तो ये सारा जो आप देख रहे हो खेल, ये DNA A का क्या है, एनालॉग है। ठीक है, ORC। So two other protein known as CDC6 and CDT1, which I have already discussed a lot, and this is able to form a licensing complex। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर ले कि कैसे यहाँ पे आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, so how DNA is whole thing is formed, so pre-RC is formed, and then again this is a type of helicase, then unwinding of DNA is started। अब क्या होगा, DNA अनबाइंड होगा। तो अब जब DNA अनबाइंडिंग हो रही है तो अब क्या होगा, प्राइमर चाहिए ना, क्योंकि DNA पॉलीमरेज is not able to distinguish and not able to synthesize a new fragment before they have RNA template and free hydroxyl group। 3-hydroxyl 3' OH group must be required for synthesis of DNA fragment। So there is a DNA polymerase alpha। DNA polymerase alpha basically
able to synthesize short fragment of RNA that is called as primase, and this is resemble as DNA G in prokaryote. Okay, so अब क्या होगा, अब DNA स्टैंड पर जैसे ही ये क्या करेगा कि प्राइमर्स बन जाएगा, शॉर्ट प्राइमर RNA के बन जाएंगे, देन दिस polymerization started on the lagging strand and leading strand. Okay, so that the polymerase delta, देख रहे हैं, the Okazaki fragment on the lagging strand it synthesizes. So lagging strand पे क्या बनेगा, Okazaki fragment बनेगा. These primers are then extended by the multiple subunit of DNA polymerase delta. This enzyme is associated with a stimulated by proliferating cell nuclear antigen that is called as pCNA in eukaryote, and this resemble in prokaryote as beta clamp. So this is also a loader. beta clamp क्या है, beta clamp होल्ड करता है डीएनए को, ठीक है, तो यहाँ पे पीसीएनए भी क्या करता है, डीएनए को होल्ड करके रखता है, ठीक है. सेम फंक्शन यहाँ पे है पीसीएनए का, जो बीटा क्लैम्प करता है प्रोकैरियोट में, सेम फंक्शन यूकैरियोट में पीसीएनए का है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, नाउ डेल्टा की कहानी हो गई. नाउ पीसीएनए हैज ए फंक्शनल एनालॉगस ऑफ दैट इज द बीटा सब यूनिट दैट इज कॉल्ड एज clamp. Okay, so DNA polymerase delta has 3' to 5' proofreading exonuclease activity and seems to carry out both leading and lagging strand synthesis in complex compared to the dimeric bacterial DNA that is the polymerase third. मैंने बोला था ना कि DNA जो लैलिंजर बुक है उसमें क्या कहता है कि DNA polymerase delta is able to synthesize both leading and lagging strand synthesis. सो जस्ट आपको कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको लगे कि हाँ डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है नॉट की लैगिंग स्ट्रैंड खाली करता है, ए लीडिंग स्ट्रैंड भी करता है, ठीक है. एंड द अनदर क्लास दैट इज कॉल्ड द गामा इप्सिलॉन दैट हेल्प इन द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस. ओके, सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बनेगा लैगिंग स्ट्रैंड पे और इसे सिंथेसाइज करेगा. तो अगेन पॉलीमरेज डेल्टा सेम सिचुएशन में है, ठीक है. तो एप्सिलॉन में आल्सो फंक्शन एट रेप्लिकेशन फॉर परहैप्स प्ले ए रोल एनालॉगस टू दैट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज 1. जैसे कि वहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज 1 काम करता है, यहाँ पे एप्सिलॉन भी करता है, रिमूविंग द प्राइमर ऑफ द ओकाजाकी फ्रैगमेंट. तो एप्सिलॉन का काम ये भी है कि ये आरएनए प्राइमर को हटा सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्लास ऑफ आरएनएज एंजाइम यूज होता है फॉर रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर. ओके, सो नाउ डियर फ्रेंड, टू अदर प्रोटीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन यूकैरियोटिक DNA replication move, that is known as RPA, that is replicating protein A is a eukaryotic single stranded DNA binding protein that is resemble as SSB protein in E. coli. Now the second thing is RCF, that is called replication factor C, is a clamp loader for pCNA. जैसे गामा कॉम्प्लेक्स होता था, बैक्टीरिया में क्या है, गामा कॉम्प्लेक्स है, and then the same gamma complex function is resembled by RCF in eukaryotic organism. समझ में आया? तो then try to give me a thumbs up. You know, it's really very important guys to make a lecture for you. मैं आपके लिए लेक्चर इसीलिए बना रहा कि आप अपने लाइफ को रियली ट्यून कर सको. इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट नाउ इट इज टू पे ए लॉट ऑफ फी फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूशन. सो दिस प्लेटफॉर्म कैन गिव यू रियली होल आइडिया अबाउट टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड ए बुक. मैं यहाँ पे कट करके क्यों चीज़ों को दे रहा हूँ, जस्ट फॉर मेकिंग यू एफिशिएंट इन रीडिंग बुक. यहाँ पे कट करके इतना कचड़ा फैलाने का कोई ज़रूरत नहीं था. आई कैन राइट ए स्मॉल थिंग एंड जस्ट आई कैन रन अवे. लेकिन मैं क्यों यहाँ पे कट एंड पेस्ट कर रहा हूँ, बुक से कट करके यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट कर करके दे रहा हूँ, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ बुक रीडिंग, हाउ ए बुक शुड बी. यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द बुक rather than following something. You know, you must have to go through some book. लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, कोई तो हो जो आपका मार्गदर्शन करे. सो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज. आई विल गिव यू होल सपोर्ट. जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड
I will sure that you will win the race. So now it's really very important to understand eukaryotic mode of replication, because पता है एक तो लीडिंग स्टैंड है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज 3 प्राइम to 5 प्राइम and the newly synthesized DNA molecule is on leading strand is 5 prime to 3 prime. There's no problem. Okay, just come to the lagging strand. You have short fragment, you have short fragment of DNA. And सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, इस short fragment of DNA synthesized that is called as ओकाजाकी फ्रैगमेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे भी शॉर्ट फ्रैगमेंट ही बनता है यूकैरियोट में भी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. अब इनको जैसे क्या है ना कि ये सिंथेसाइज हो रहा है फ्रैगमेंट में, डिसकंटिन्यूअस मूड में है. ठीक है, तो क्या होता है जैसे ही आप सील करते हो डीएनए लाइगेज से, तो यहाँ पे क्या आता है, एक फ्लैप छूट जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस जो जीनोमिक डीएनए है वो छूट जाता है. ठीक है, और यह डीएनए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. और टेलोमियर लास्ट में अगर छूट गया कोई सीक्वेंस, लास्ट में अक्सर क्या होता है कि कोई जब लास्ट वाला तो जुड़ेगा नहीं, जैसे आप जोड़ते जा रहे हो, तो लास्ट वाला फ्रैगमेंट यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन, लास्ट वाला फ्रैगमेंट आप जोड़ नहीं सकोगे, तो वो लॉस्ट हो जाएगा. एंड ईच एंड एवरी टाइम यू विल लूज सम पार्ट ऑफ योर जीन. सो टू प्रिवेंट दिस, telomere replication is really very interesting, and this telomere is really very important for aging also. जब एजिंग जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं तो आपका टेलोमियर शॉर्ट होता जाता है, और टेलोमियर की शॉर्टिंग के कारण एजिंग होती है. फिर आपको यही याद रखना है कि जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स खत्म होगा, ठीक है, ये पूरा मशीनरी खत्म होगा, वहाँ पे CMG कॉम्प्लेक्स होगा, और उसके आगे आपका क्या होगा, DNA टोपोआइसोमरेज बैठा हुआ रहेगा, ताकि वो कहेगा बस अब बस करो, अब नहीं बनाना है. ठीक है, जो आपका काम था आपने कर दिया, नाउ यू कैन गो, योर वर्क इज फिनिश, यू कैन गो. सो CMG कॉम्प्लेक्स डिसाइड दैट वेदर एंड हाउ मच DNA फ्रैगमेंट हैव टू बी replicated. And then after DNA topoisomerase reveal these all supercoiling and all and make the DNA relaxed. ना सारी सिंथेसिस हो गई, सब कुछ हो गया, DNA पॉलीमरेज को घूमना था घूम लिया. Now DNA should be in relaxed form. So DNA topoisomerase do that work. So these two things, topoisomerase function and telomere function, is really very important to understand, you guys. Okay. अब बात करें तो ये अब हमें यहाँ पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई हैव डिस्कस अ लॉट, जस्ट पॉज माई वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग्स. ओके, दीज ऑल थिंग्स आर डिस्कस. हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे समझना है, द यूकैरियोटिक जीनोम कंटेन ए सिग्निफिकेंटली मोर ओरिजिन बिकॉज duplication of their large linear chromosome require establishment of replication fork at multiple location. तो यहाँ पे क्या होता है, multiple origin of replication generate होता है, but प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता. यूकैरियोट में ये चीज़ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड, कि मल्टीपल साइट से ऑरिजिन स्टार्ट होता है, मल्टीपल ऑरिजिन साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, बट प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो जस्ट आई एम स्किपिंग दिस थिंग्स बिकॉज आई हैव डिस्कस अ लॉट. सो इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम, जस्ट स्टॉप माय वीडियो एंड ट्राई टू रीड दिस थिंग्स. ओके, सो नाउ आई अगेन गो थ्रू द some animated form of format. So as you can see here, this is called as ORI. This is ORI, that is origin of replication. This again it is sequence, or in East you can also term this as a ARS, autonomously replicating sequences, which I have already discussed a lot. So यहाँ पे क्या होगा, these all things, I think these all enzymes you know, and if you don't know, stop it and try to memorize about these things. You know, these all things are discussed a lot, and
you know these things can really help you guys, no? आपको पता ही है अल्फा क्या करता है, डेल्टा क्या करता है, एप्सिलॉन क्या करता है, प्राइमेज क्या करता है ना। तो सबसे पहले एक और आई सी है, यहाँ पे CDC6 आएगा, यहाँ से CDT1 आएगा। दिस इज ATP ड्रिवन प्रोसेस, ठीक है। सो ATP के साथ CDC6 आएगा और A आएगा, ये O और C पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगी, MCM जो हेलिकेज है ये G1 फेज में चल रहा है। जो प्री RC जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, G1 फेज में बन रहा है। और ये जैसे ही यहाँ पे लोड हो जाएगा तो पूरा प्री RC कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो दो चीज़ों को बताएगा। पहला क्या बनाएगा, लाइसेंसिंग बताएगा, दूसरा रेप्लिकेशन का स्टार्ट बताएगा। कहेगा कि नाउ इट इज एक्टिव फॉर DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। CDT is inhibited by Gemini. This is really very important for you guys. If you want to understand, just try to understand about these things, okay? So pre-RC complex बन के तैयार। This is your pre-RC complex, ठीक है। Any doubt you have? No. So we will go further. अब यहाँ पे आएगा CDC45 and GINS, ठीक है। ये क्या करेगा, दैट इज इनहिबिटेड बाय जेमिनी। एंड यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा। फॉस्फोरिलेशन होगा ताकि अब क्या हो रहा है, अब प्री RC कॉम्प्लेक्स बना, अब इसे एक्टिवेट होना जरूरी है। तो फॉस्फोरिलेशन लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इस सारी कॉम्प्लेक्सेस फॉस्फोरिलेट होंगे, है ना, MCM। एंड क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स अब क्या होगा, अब MCM आगे आगे बढ़ता जाएगा और DNA जो फ्रैगमेंट है, जो DNA के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसे क्या करेगा, क्लीव करने लगेगा, ठीक है। ये जो CMG कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा, CMG कॉम्प्लेक्स इज एज लाइक ए हेलिकेज। वहाँ पे DNA B DNA C के साथ आ करके वहाँ पे जा करके तोड़ रहा था। यहाँ पे CMG कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करे और एक रेप्लिकेशन फॉर्क जनरेट करे, ठीक है। वो यहाँ पे यही होगा, यू नो, दिस इज हैपनिंग। सो दिस होल CMG कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, एक क्लीव कर रहा है आपका पूरा DNA स्ट्रैंड को, ताकि वो एक रेप्लिकेशन फॉर्क को जनरेट करे। एंड एज सुन एज टू सेपरेट स्ट्रैंड इज देयर, देन यू नो RPA इज ए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एज लाइक इन प्रोकैरियोट। सो यहाँ पे क्या करेगा, RPA आके बाइंड करेगा ताकि जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है वो डिग्रेड हो, ठीक है। सॉरी। सो वन इज द लीडिंग स्टैंड। सो लीडिंग स्टैंड पे सिंथेसिस जो होगी वो क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। और इस पे क्या होगी, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ DNA फ्रैगमेंट विल फॉर्म एंड देन फर्दर लाइगेटेड बाय DNA लाइगेज, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए ये सब चीजें आप ध्यान से देखो, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, तो दिस इज द लैगिंग स्टैंड एंड दिस इज द लीडिंग स्टैंड। दिस इज द कंटिन्यूअस DNA synthesis. This is your DNA polymerase, this is your CMG complex। और जहाँ पे टोपोआइसोमरेज मिलेगा उसके बाद क्या होगा, हॉल्ट करेगा। तो हॉल्टिंग देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब क्या है, अब जैसे जैसे DNA फ्रैगमेंट क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, हेलिकेज क्या करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे क्या होगी, DNA की सिंथेसिस होती जाएगी। So this is elongation process, okay। चलिए, so now what is the story? So story is really very important to know। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भैया आप कर रहे हो continuous DNA synthesis, okay। So now we have to change the color of pen to understand very crystal clear things, you know, we have to make crystal clear, you know। somehow यहाँ पे क्या होगा, आपका DNA टोपोआइसोमरेज होगा और यहाँ पे आपका जो ये जो आपका हेलिकेज है वो रुक जाएगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है, DNA के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो तोड़ करके वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो खोलता जा रहा है, DNA रेप्लिकेशन फॉर्क जनरेट कर रहा है, ठीक है।
one of the strand is a leading strand where continuous DNA synthesis is going on. Now the second, the lagging strand, the DNA synthesis in a Okazaki fragment, that is a short stretch of fragment is synthesized on the lagging strand. And then जरा सोचो कि जब ज्वाइन होगा एक दूसरे से तो कुछ ना कुछ क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड बचा रहेगा। और ये सब तो चलो ठीक है, लास्ट वाला जो फ्रैगमेंट होगा उसको कहाँ ज्वाइन करोगे? तो वन फ्लैप इज देयर, सो दैट फ्लैप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट थिंक देयर इज ए जीन, वो लास्ट के फ्लैप में, यहाँ पे जो फ्लैप है, समझो ये फ्लैप जो देख रहे हो जनरेटेड, यहाँ पे समझो कोई जीन है, वो तो लॉस्ट हो जाएगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टेलोमेरिक रेप्लिकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वी विल डिस्कस इट ऑल्सो। सो यहाँ पे कोई एक्सोन्यूक्लियर प्राइमर को कौन हटाएगा? क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस प्राइमर इज रिमूव्ड बाय RNase H. Removal of primer, this yellow portion is degraded by RNase H because it will do not. FEN1 क्या करेगा? जो फ्लैप बन रहा है आपका, थोड़ा थोड़ा जो बाहर जो हो, वो क्या करेगा? FEN1 उसको हटा करके आराम से पूरा सिंगल स्टैंड बना के देगा। लेकिन जो लास्ट का फ्लैप होगा उसकी क्वेश्चन, उसके लिए क्वेश्चन मार्क है, उसके लिए टेलोमेरिक, क्योंकि वो टेलोमियर का एंड हो जाएगा। सो टेलोमेरिक रेप्लिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो दिस इज होल अबाउट यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन गाइज, ठीक है? अब हम टर्मिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है? बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है, तो दोनों स्ट्रैंड पर क्या है? एक एक हेलिकेज लोडेड है, ठीक है? और CMG कॉम्प्लेक्स क्या है? पूरा हेलिकेज एक्टिव कॉम्प्लेक्स है जो कि रन कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा रहा है, स्ट्रैंड को सेपरेट कर रहा है। जो डबल स्टैंडर्ड है उसे क्या कर रहा है? देखिए, तोड़ रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड बना रहा है, और वहां पे RPA जाकर के सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह उसे सपोर्ट दे रहा है, ठीक है? समझ में आई बात? चलिए, सो लीडिंग स्ट्रैंड एक होगा तो जिस पर कंटिन्यूअस DNA सिंथेसिस होगी। देखिए, इरेज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, तो 5 प्राइम से जो सिंथेसिस होगी वो कंटिन्यूअस होगी, लेकिन जो A होगा वो लैगिंग स्ट्रैंड बन जाएगा। समहाउ यहाँ पे जब बात करें, बीच से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे इधर वाला आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, इधर वाला डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रही है बात? इसको प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करो अपने कॉपी पे, यू विल रियली रियलाइज अमेजिंग, यू नो, दिस थिंग कैन मेक यू, ओ इतना इजी था DNA रेप्लिकेशन, जिसको मैं इतना बड़ा बना करके सोचे हुए था अभी तक। इट्स रियली वेरी इजी, जस्ट ट्राई, टेक ए पेन एंड कॉपी एंड जस्ट ट्राई टू डू इट, यू विल एंजॉय लॉट। और मजा आ जाएगा दोस्त, एक बार कॉपी कलम उठा के तो देखो, मजा आना है। मैं लिख के देता हूँ, नथिंग इज लेफ्ट, मजा आएगा आपको। प्लीज अच्छे से इसको करिए, ठीक है? और जब भी आप ऐसे चीजें देखें ना, पेन एंड पेंसिल उठाएं और ट्राई टू मेक दिस डायग्राम्स, यू विल, आई नो, लिटरली जब आप शुरू करोगे ना, इन स्टार्टिंग इट्स क्रिएट ए प्रॉब्लम, बट after few interval of time, after due course, you know this is really help you a lot. So start writing on your notepad. अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। सो ये है K48, दिस इज लाइसिन रेसिड्यू, यहाँ पे यूबिक्विटिनेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है? सो जैसे ही यहाँ पे यूबिक्विटिनेशन होगा, तो यूबिक्विटिनेशन होने के बाद क्या होगा? आपका ये है SCF-E3 यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे क्या होगा? MCM इज यूबिक्विटिनेटेड। अब MCM जो आपका था, जो CMG कॉम्प्लेक्स का MCM था, उस पर क्या हो गया? यूबिक्विटिन आकर के बाइंड कर गया। नाउ यूबिक्विटिनेटेड MCM इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ P97, दैट इज प्रोटीन रीमॉडलर। यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं होगा, रीमॉडलिंग होगा। देखिए, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो यूबिक्विटिन बाइंड करके उसे डिग्रेड करा दे, या तो रीमॉडल कर दे। यूबिक्विटिन ऐसा नहीं है कि हमेशा डिग्रेड कर देता है, यू नो, यू हैव टू माइंड इट। यूबिक्विटिन इज नॉट ऑलवेज डिग्रेड द प्रोटीन, इट कैन रीमॉडल द प्रोटीन। Remodeling is also very important, and that is
done by P97 VCP, that is a segregate enzyme. वो segregate करता है, अब इसको अलग अलग कर देगा. So now this cause disassembly of activity. So active complex क्या हो जाएगा, inactive हो जाएगा. Now helicase is not able to function. This CMG complex is get separated. So this separation leads to disassembly of CMG complex. So CMG complex नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो गया भैया. Now termination is happened. So your job is done. So thank you so much for watching my lecture. See you soon. Eukaryotic mode of replication. Thank you so much for watching my lecture. Stay tuned. Bye. Take care.